ओम साई राम। साई आत्मा चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। ओम साई राम। श्री दास गनु महाराज जी। गणपत राव से कैसे वो दास गनु महाराज जी बने, श्री दास गनु महाराज जी बने बाबा के आशीर्वाद से, वही मैं पहले बताती थी। बीच में छूट गया था कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फिर से। तो लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी श्री दास गनु महाराज जी को लेके, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो शुरू करती हूँ फिर से। Dasganu was anxious to render even a Sanskrit Upanishad, namely Ishavasya Upanishad, into Marathi. This famous Upanishad consists of only 18 verses. It is full of great thoughts and has been considered by Mahatma Gandhi to be peculiarly important. दासगनु जी एक संस्कृत उपनिषद अर्थात ईशावास्य उपनिषद को मराठी में प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक थे। इस प्रसिद्ध उपनिषद में केवल 18 छंद थे। ये महान विचारों से भरा है और महात्मा गांधी द्वारा विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। महात्मा गांधी said that if the whole of Hindu spiritual literature were gone living, only this Ishavasya Upanishad, the whole of Hindu Dharma, could be reconstructed with this alone. महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि केवल इसी ईशावास्य उपनिषद को छोड़कर समस्त हिंदू आध्यात्मिक साहित्य समाप्त हो जाए तो संपूर्ण हिंदू धर्म का पूर्ण निर्माण इसी से ही हो सकता है। Having so many difficulties in the way of his ambition, Dasganu Maharaj went to Baba. Baba said, "What difficulty is there in this? You had better go as usual, Kaka Saheb Dikshit's bungalow in Ville Parle, and there that coolie girl Malkarni will give you the meaning. People laugh at a great Pandit like Dasganu Maharaj getting interpretation of an Upanishad from a coolie girl, but Dasganu went to Kaka's bungalow." अपनी महत्वाकांक्षा के रास्ते में इतनी कठिनाइयाँ होने के कारण दासगनु महाराज जी बाबा के पास गए। बाबा ने कहा, इसमें क्या कठिनाई है? बेहतर होगा कि आप हमेशा की तरह काका साहेब दीक्षित के बंगले भीले पार्ले में चले जाइए और वहाँ वो कूल गर्ल मौलकारनी आपको इसका मतलब बताएंगी। लोगों ने हंसना प्रारंभ कर दिया। लोग हंसते ही कि दासगनु महाराज जैसे पंडित, महान पंडित एक कूल गर्ल से एक उपनिषद की व्याख्या करवाते हैं। पर दासगनु काका के बंगले पर चले गए क्योंकि उनको बाबा के ऊपर दृढ़ विश्वास थी, क्योंकि बाबा जो कहते हैं वो ब्रह्म वाक्य है। He slept there. When he woke up in the morning, he heard a girl singing a song in great joy. She is praising some orange-colored silk sari, wondering at its fineness, the beauty of its borders, and the floral embroidery on it. Then he just peeped to see who the songster was. The songster had no sari. She wore a rag which was not silk nor orange colored, had no border and no embroidery. वो वही सो गया
जब वो सुबह उठा तो उसने एक लड़की को बड़े आनंद में गाना गाते हुए सुना। वो किसी नारंगी रंग की रेशमी साड़ी की तारीफ कर रहे थे। उसकी सुंदरता, उसकी सीमाओं की सुंदरता और उस पर फूलों की कढ़ाई के बारे में सोच रही थी और गाना गा रही थी। ये देखने के लिए कि गीतकार कौन है, गायिका के पास कोई साड़ी ही नहीं थी। उसने एक छितरा पहना हुआ था जो ना तो रेशम का था, ना नारंगी रंग का था, ना कोई किनारा था उसका और ना कोई कढ़ाई। He pitied the girl and got a friend to give her a sari. She wore it just for a one day and went about enjoying it. But the very following day she cast it aside, again wore her tatters, and again began to sing joyously the song Orange Color Sari and its beauty. Then Dasganu understood the Upanishad. He found out that the girl's happiness lay not in external sari which she had thrown away, but in herself. And Ishavasya Upanishad says the same thing. All this world, says the first verse, is covered by Maya of Ishvara. So enjoy bliss not by having the external, but by rejecting the external. Might mean being content with what God gives you. The girl was happy as she was contented. Thus Baba taught Ishavasya Upanishad to Ganu through a coolie girl. Baba's way of teaching were and are peculiar and different in the case of different individuals. दास गनु को लड़की पर दया की और एक दोस्त को उसे एक साड़ी देने के लिए कहा। उसने इसे सिर्फ एक दिन के लिए ही पहना और इसका आनंद लेती चली गई, रंगीन साड़ी और उसका सौंदर्य की। तब दासगण उपनिषद को समझ गए। उन्हें पता चला कि लड़की की खुशी बाहरी साड़ी में नहीं है जिसे उसने फेंक दिया था, बल्कि खुद में है। और ईशावास्य उपनिषद एक ही बात कहता है। ये सारा संसार पहले श्लोक कहता है ईश्वर की माया से आच्छादित है, इसीलिए आनंद का आनंद लो, बाहरी होने से नहीं बल्कि बाहरी को अस्वीकार करके। इसका मतलब ये हो सकता है कि ईश्वर आपको जो देता है उससे ही संतुष्ट रहो। लड़की संतुष्ट होने के साथ ही खुश थी। इस प्रकार बाबा ने एक शांत लड़की के माध्यम से गनु को ईशावास्य उपनिषद सिखाया। बाबा की पढ़ाने का तरीका अलग अलग व्यक्तियों के मामले में अलग अलग था। जय साई राम।